section 84 of the IPC talks about unsoundness of mind. Talks about unsoundness of mind. What does the section say that is displayed right in front of you? Section की heading है act of a person of unsound mind. Nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it, by reason of unsoundness of mind, who at the time of doing it, एक minute, I'll do it with a different ink. At the time of doing it, ये important है, by the reason of unsoundness of mind, is incapable of, sorry, is incapable of knowing the nature of the act, or your की अपनी एक significance है, that he is doing what is either wrong, इस और की भी सीक्वेंस एक सीक्वेंस में बैठेगा एंड इसकी भी अपनी एक सिग्निफिकेंस है, और कॉन्ट्री टू लॉ. तो से प्लेन रीडिंग ऑफ दिस सेक्शन सेज नथिंग, वो कोई भी ऑफेंस नहीं होगा विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, जिस समय वो कर रहा है, बाय द रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, is incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either, इस either की भी अपनी एक significance है, either wrong or contrary to law. तो बोल रहा है कि वो कोई भी offense नहीं होगा जब जिस समय वो हो रहा है unsoundness of mind के कारण, by the reason of unsoundness of mind, वो व्यक्ति, I should use the word accused, that accused is incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either a wrong or contrary to law. This is what the section says. Now, please understand, before I begin with the section 105 of the Indian Evidence Act. Section 105 of the Indian Evidence Act says, whenever the accused takes the defense, of application of any general exception, or any special exception, or any proviso, देखो, I'm just stopping here. एक बात तुम्हें मैं बता दूं यहीं पर, I'll delete it after this. आईपीसी में आपको दो चीजें मिलेंगी, एक होता है प्रोवाइजो और एक होता है एक्सप्लेनेशन. प्रोवाइजो का मतलब होता है प्रोवाइडेड दैट. प्रोवाइजो हमेशा एक सेक्शन का एम्बिट डिक्रीज कर देता है. प्रोवाइजो हमेशा एक सेक्शन का एम्बिट डिक्रीज कर देता है. डिक्रीज बोल लूं या लिमिट कर देता है. होता है ना, प्रोवाइडेड दैट यू डू दिस देन दिस विल हैपन. अगर ये करोगे तो ही ये मिलेगा, प्रोवाइडेड दैट. तो प्रोवाइजो का मतलब होता है प्रोवाइडेड दैट. इट लिमिट्स द स्कोप ऑफ द सेक्शन. Explanation, on the other hand, increases, or I should use the word broadens the scope. Explanation हमेशा एक सेक्शन का स्कोप बढ़ा देता है. ये सेक्शन के नीचे लिखा जाता है हमेशा. सो फॉर एग्जांपल, अगर इसके नीचे मैं प्रोवाइजो लिखता, अगर प्रोवाइजो सो एंड सो, तो मतलब ये सेक्शन तभी लागू होगा प्रोवाइडेड ये जो कंडीशन लिखी है मैंने ये फुलफिल हो. अब इसी के नीचे मैं अगर एक्सप्लेनेशन लिखता, if I would have written explanation beneath the section, that means ये तो होगा ही होगा, जो भी मैं लिखूंगा, that this will be read in
conjointness of this section, which will thereby increase the ambit of section 84. So explanation will always increase the ambit and proviso will always delimit तो नहीं बोलना चाहिए, proviso will always limit the section. I hope this is clear. मैं इसको डिलीट कर रहा हूं अब. Now coming back, section 105 of the Indian Evidence Act says whenever the accused takes the defense of any application of when it takes in defense of any application of any general exception or special exception or proviso, the burden of proof, BOP stands for burden of proof. Burden of proof मतलब burden of proving that thing will always lies upon the accused. ये 105 सिर्फ 84 के केस में लागू हो रहा है. समझ लो क्या कह रहा है कि whenever the accused takes the defense of application of any general exception or special exception or proviso. I'm currently talking about general exceptions. So whenever the accused takes the defense of an application of any general exception or special exception or proviso, the burden of proving that exception lies upon the accused, and the court shall presume. पहले आपको मतलब बता चुका हूं shall presume का. The court shall presume कि ऐसा कोई circumstances हुआ ही नहीं था. Court shall presume that no such circumstances took place what accused is claiming, but उसको अगर कोई जनरल एक्सेप्शन में केस फॉल करता है आपका, या स्पेशल एक्सेप्शन में केस फॉल करता है, या प्रोवाइजो में केस फॉल करता है, then the burden of proving that general exception, special exception or proviso lies solely upon the accused, and the court shall presume, मतलब मैंडेटरी है कोर्ट के ऊपर ये प्रिज्यूम करना कि जो accused डिफेंस ले रहा है वो ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, और बर्डन ऑफ प्रूफ लेकिन अक्यूज्ड पे है, वो प्रूव कर ले. अगर वो प्रूव कर देगा तो लागू हो जाएगा. बट कोर्ट स्टार्टिंग से अक्यूज के साथ कभी नहीं चलेगा. कोर्ट हमेशा अक्यूज के अगेंस्ट होगा और कोर्ट बोलेगा कि मैं ऐसा कुछ प्रिज्यूम नहीं कर रहा हूं, तुम बताओ. तो मतलब अक्यूज बताए, अक्यूज प्रूव करे कि उसका केस जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता है. इज दिस अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक सबको ठीक है. Having understood this, अब आ जाओ फ्रेश पेज पे. आई होप आपने सेक्शन पूरा लिख लिया है, बिकॉज मुझे तो सेक्शन पूरा याद है. आप लोगों के लिए मैंने अंडरलाइन किया था इसको, सो प्लीज इसको लिख लीजिएगा. नाउ यू सी सेक्शन 84 क्या बोल रहा है. सेक्शन 84 बात कर रहा है एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. कोई एक्ट उस बंदे का जो अनसाउंड माइंड का है. ठीक है. अब वो क्या बोल रहा था. द एक्ट सेज नथिंग इज एन ऑफेंस which is done by a person who at the time of doing it तो पहले at the time of doing it को समझते हैं जरा. You see, मैं पता क्या कर रहा हूं इस समय. I am now understanding or explaining, I should say, explaining section 84 threadbare. मैं सेक्शन को तोड़ रहा हूं सारा, वो तोड़ के समझाऊंगा कि सेक्शन 84 क्या बोलते हैं, क्या बोलता है. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज threadbare understanding the section. Nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it, आगे का भूल जाओ, who at the time of doing it. इसका मतलब होता है जिस समय ए ने बी को गोली मारी,
गोली मारने के बाद ही शॉट एंड किल्ड, गोली मारने के बाद वो उसको गोली मारी एंड आफ्टर दैट बी वाज किल्ड। जिस समय ए ने बी को गोली मारी, दैट इज द टाइम व्हेन ए शॉट एंड किल्ड बी। लिसन टू इट वेरी केयरफुली। व्हेन ए शॉट एंड किल्ड बी, इस टाइम पे, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, या इसको बोल दूं एट एट द, इसको ऐसे लिख लो, तो इसको ऐसे लिख लो, द टाइम व्हेन ए शॉट एंड किल्ड बी। सो at the time of doing this act, at the time of doing this act, कौन सा act? Shooting and killing का। At the time of doing this act, it is at this time that the unsoundness of mind has to be proved. It is at this time that the unsoundness of mind has to be proved. Has to be proved, या उसको बोल लो, it is at this time that unsoundness of mind should have existed. कब unsoundness of mind prove होना चाहिए, या unsoundness of mind exist करना चाहिए? किस समय? जिस समय ए ने बी को गोली मारी और गोली मारने से वो मर गया। At that time, अगर if A was unsound, if A was unsound before or after, if A was unsound before and after and not at the time of shooting and killing, तो सेक्शन 84 का डिफेंस उसको नहीं मिलेगा। जिस समय ए ने बी को गोली मारी, at that time it has to be proved, या at that time A should A के पास unsoundness of mind should exist। उस एक्ट, ये एक्ट ऑफ गोली मारना और उस गोली मारने से मर जाना, वो उस एक्ट से पहले नहीं और उस एक्ट के बाद नहीं अनसाउंडनेस ऑफ माइंड होनी चाहिए। उस समय, at that time A should suffer from unsoundness of mind. Only then will the defense of section 84 will be proved. Sorry, only then the defense of section 84 will be granted to the accused. Not at the time before the act, not at the time after the act. 84 will only apply when the unsoundness of mind existed. एक sentence लिख लीजिए please. Section 84 will exist. Section 84 will exist only at that time. Only at that time when the accused, 84 existed only at the time when the accused shot and killed B. Accused shot and killed B. Full stop. Full stop. If the accused was unsound, before, को इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल लीजिएगा, if the accused was unsound before इन्वर्टेड कॉमर्स में और after again इन्वर्टेड कॉमर्स में, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, before or after and not at the time of the act को ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, shooting and killing, and not at the time of the act, then he will not get the defense. Then he will not get the defense of section 84. First of next line. Burden is not to prove. Burden is not to prove. Oh, sorry. Burden is not to prove prior unsoundness. Burden is not to prove prior unsoundness
or subsequent unsoundness, burden is not to prove the prior unsoundness or subsequent unsoundness, rather the unsoundness at the time when the accused committed the act, rather at the time when the accused committed the act. ठीक है. सो पहला पॉइंट वाज एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट, का मतलब ये है कि जिस समय अक्यूज ने गोली मारी विक्टिम को, उस समय एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही शुड सफर फ्रॉम एनी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड. प्रायर अनसाउंडनेस और सब्सिक्वेंट अनसाउंडनेस विल नॉट सफाइस. ही विल नॉट गेट द डिफेंस. देखो आगे लेके चल रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग का लेवल बढ़ा लेना प्लीज. यू सी at times what happens कि कुछ अनसाउंडनेस परमानेंट होती हैं, कुछ अनसाउंडनेस परमानेंट होती हैं और कुछ अनसाउंडनेस टेम्पररी होती हैं. अब जैसे फॉर एग्जांपल EDC, IDIOCY, IDC मतलब मेंटली रिटार्डेड. कोई मेंटली रिटार्डेड है, अगर कोई मेंटली रिटार्डेड है या कोई मेंटली रिटार्डेड बोल लो, या कोई परमानेंटली अनसाउंड है, परमानेंटली अनसाउंड है, ये तो होती है परमानेंट अनसाउंडनेस. परमानेंट अनसाउंडनेस का केस है फिर तो बहुत इजीली प्रूव हो जाएगा कि ये तो परमानेंटली अनसाउंड है. बट कुछ केसेस में अनसाउंडनेस टेम्पररी होती है. जैसे फॉर एग्जांपल एपिलेप्सी का मतलब जैसे फिट्स पड़ने, दौरे पड़ते हैं ना, फिट्स पड़ने, शायद उसी को बोलते हैं शायद एपिलेप्सी. एक होता है और एक और क्या टेम्पररी उसको बोलते हैं ना, हाउ डू यू प्रोनाउंस दैट वर्ड, जिसमें रात में चलने की बीमारी होती है, नींद में. इंसोम्निया. हाँ, इंसोम्निया. या इंसोम्निया. इंसोम्निया. हाँ, इंसोम्निया इज ऑल्सो अ टेम्पररी अनसाउंडनेस. इंसोम्निया इज ऑल्सो टेम्पररी अनसाउंडनेस. तो अगर परमानेंट अनसाउंडनेस का केस है, फॉर एग्जाम्पल EDC हो गया, या परमानेंटली अनसाउंड है कोई, तो उस केस में तो डिफेंस आपको उस केस में जरा कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस तुरंत प्रूव कर दो कि वो परमानेंटली अनसाउंड था, तो कोर्ट ऑटोमेटिकली मान लेगा कि जब अक्यूज ने वो एक्ट किया उस समय भी वो अनसाउंड था, बिकॉज उसकी अनसाउंडनेस परमानेंट है. प्रॉब्लम क्रिएट होती है टेम्पररी अनसाउंडनेस में, कि जिस समय अक्यूज को 24 घंटे फिट्स नहीं पड़ते, बट जिस मोमेंट पे उसको फिट्स पड़े, उसी मोमेंट पे उस फिट्स के नशे में उसने वो एक्ट किया. सो पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज, मैं इसको रीड कर रहा हूं. पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज, एक सेकंड. Point to be noted here is कि unsoundness of mind is not permanent. Unsoundness of mind is not permanent. There the judge, yeah, I should say the court, there the court has to examine. There the court has to examine as to whether he, as in the accused, he was unsound at the time of doing of the act. He was unsound at the time of doing of the act. परमानेंट केसेस में ये ध्यान रखना, इट इज वेरी इजी, क्योंकि परमानेंट ही है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है. तो जिस समय उसने एक्ट किया तभी परमानेंसी चली रही थी. टेम्परेरी के केसेस में, टेम्परेरी अनसाउंडनेस के केसेस में, द कोर्ट हैज टू एग्जामिन कि जिस मोमेंट पे वो उसको फिट्स पड़े
या जिस मोमेंट पे वो इंसोम्निया से चल रहा था, नींद चल रहा था, उसने उस समय उस एक्ट के आफ्टर इफेक्ट में वो मतलब उस अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के आफ्टर इफेक्ट में उसने वो एक्ट किया। अब सवाल ये उठता है कि हाउ विल द अक्यूज प्रूव, हाउ विल द अक्यूज प्रूव, हाउ विल द अक्यूज प्रूव कि मुझे अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, नंबर वन दैट आई हैव अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, एंड नंबर टू जिस मोमेंट पे मैंने वो एक्ट किया उस मोमेंट पे आई वाज अनसाउंड माइंड। हाउ विल द अक्यूज प्रूव दीज टू थिंग्स, कि मैं अनसाउंड माइंड का हूं, और सेकंड जिस मोमेंट पे मैंने वो एक्ट किया उस मोमेंट पे मैं अनसाउंड माइंड का था। क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, उससे पहले का अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और उसके बाद का अनसाउंडनेस ऑफ माइंड कोई लागू नहीं होता, उस वेरी मोमेंट पे अनसाउंड माइंड होना चाहिए। तो अक्यूज प्रूव कैसे करेगा? तो जवाब बहुत सिंपल है, ही विल प्रूव बाय सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस, ही विल प्रूव बाय सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस। अब मैं सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस को एनसर्कल कर रहा हूं क्योंकि इसका एग्जांपल अभी देना है मैंने आपको, ये आपको समझ में नहीं आएगा जब तक मैं एग्जांपल नहीं दूंगा आपको। बट अभी के लिए छोड़ दो इसको, अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि अक्यूज कैसे प्रूव करेगा कि वो अनसाउंड माइंड का है या जिस समय उसने एक्ट किया वो अनसाउंड माइंड का था, बाय प्रूविंग दी सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस। इसमें एक सेंटेंस लिख लीजिए प्लीज। द accused will have to prove, the accused will have to prove, the accused will have to prove his conduct। कल मैंने क्या समझाया था, कंडक्ट से क्या प्रूव करते हो आप? इंटेंशन, Intention. हाँ, इंटेंशन। The accused will have to prove his conduct at the time of doing of the act. The accused will have to prove his conduct at the time of doing of the act. Full stop. Full stop. His preceding and subsequent conduct, his preceding and subsequent conduct, his preceding and subsequent conduct in the light of the surrounding circumstances, his preceding and subsequent conduct in the light of surrounding circumstances, in the light of surrounding circumstances, has to be proved in order to prove unsoundness of mind, in order to prove the unsoundness of mind. सर मैं आगे चलूं? Yes, sir. देखो Yes, sir. हाँ, देखो सेक्शन क्या बोल रहा है, फिर से एक बार सेक्शन पढ़ना चाहूंगा मैं, तुम लोग जहां तुमने लिखा था उसको पढ़ो। Nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it, तो it at the time of doing it का मतलब the act or omission, at the time of doing it का मतलब होता है act या omission। This is what I call threadbare understanding the section को तोड़ रहा हूं पूरा और तोड़ के समझा रहा हूं। Nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it, at the time तो मैंने समझा दिया आपको, at the time of doing it का मतलब act, at the time of doing it by reason। मैं इसको फ्रेश पेज पे लिखना चाहता हूं प्लीज। by
by the reason of unsoundness of mind, by the reason of unsoundness of mind, is incapable of knowing incapable of knowing the nature of the act, or that or that he is doing what is either wrong or contrary to law. ये समझिएगा ध्यान से प्लीज। ये जो मैंने आपको सामने आपके स्क्रीन पे जो टेबल बनाई है ना, ये टेबल अगर नहीं लिख पाए तुम तो तुम्हें सेक्शन कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो उसको आई हैव ब्रोकन द सेक्शन नाउ, प्लीज राइट दिस टेबल डाउन इमीडिएटली। Nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it, by the reason of unsoundness of mind, is incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong or contrary to law. Either wrong or contrary to law. You see, by the reason of unsoundness of mind. This says that this section is what should I say? This section consists of medical unsoundness. By the reason of unsoundness of mind का मतलब होता है कि ये मेडिकल अनसाउंडनेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं इंक बदल देता हूं। is incapable of knowing the nature of the act. इसका मतलब होता है लीगल अनसाउंडनेस। तो देखो सेक्शन 84, वापस आ रहा हूं सीइंग पे। सेक्शन 84 दो किस्म की अनसाउंडनेस की बात कर रहा है, एक मेडिकल और एक लीगल। Section 84 talks about two types of unsoundness of mind. One is medical and one is legal. ये प्लीज बना लीजिएगा, और this section is very very important. By the reason of unsoundness of mind का मतलब होता है medical unsoundness, and is incapable of knowing the nature of the act. Says that this talks about legal unsoundness. So hence section 84 talks about both medical unsoundness and legal unsoundness. और लीगल अनसाउंडनेस। देखो मैं एग्जांपल देता हूं तुम्हें। थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या समझाया था कि मैं किसका एग्जांपल अभी दूंगा आपको? सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस का बताया था।
सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस, इसका मतलब होता है लीगल अनसाउंडनेस। तो देखो सेक्शन 84, वापस आ रहा हूं सीइंग पे, सेक्शन 84 दो किस्म की अनसाउंडनेस की बात कर रहा है, एक मेडिकल और एक लीगल। Section 84 talks about two types of unsoundness of mind. One is medical and one is legal. ये प्लीज बना लीजिएगा, और this section is very very important. By the reason of unsoundness of mind का मतलब होता है medical unsoundness and is incapable of knowing the nature of the act. Says that this talks about legal unsoundness. So hence section 84 talks about both medical unsoundness and legal unsoundness. Talks about both medical unsoundness और legal unsoundness. देखो मैं एग्जांपल देता हूं तुम्हें। थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या समझाया था कि मैं किसका एग्जांपल अभी दूंगा आपको? Surrounding थोड़ी देर मैंने circumstances. आपने सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस का बताया था। सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस। भाई मैंने तुम्हें क्यों सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस लेकर आया था? मैं तुम्हें बोलता कि हाउ विल द अक्यूज्ड प्रूव that whether he belongs to unsound mind at the time when he did the act? How will the accused prove that when at the time he did the act or omission he was of unsound mind? तो वो प्रूव कर सकता है सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस से। एग्जांपल ले लो, अपना एग्जांपल ले लेता हूं। तुम जैसे मैं हूं, आई एम देयर, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग राइट नाउ। मैं पढ़ाते तो जैसे मैं अपने आई एम नॉट सिटिंग इन माय ड्राइंग रूम बट मतलब इट्स नियर बाय, तो मैं पढ़ाते पढ़ाते पागल हो जाऊं, अपने कपड़े वपड़े फाड़ लूं और अपनी डाइनिंग टेबल के ऊपर चढ़ के डांस करना शुरू कर दूं। और सॉरी मतलब एग्जांपल से समझ में आएगा तो इसलिए ले रहा हूं। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, इस समय आई एम टीचिंग राइट नाउ एंड पढ़ाते पढ़ाते मैं सडनली पागल हो गया, और पागल होने के बाद मैं अपने अपने कपड़े फाड़ लिए मैंने, और अपनी अपनी डाइनिंग टेबल पे जाके डांस करने लग गया, और वहां से मेरी मम्मी दिखी मुझे, आई शॉट हर, गोली मार दी मैंने उनको, मतलब आई शॉट हर, गोली मार दी मैंने उनको। और फिर जब मेरे पे एफआईआर लॉन्च हुई, ध्यान सुनिए, ये एग्जांपल ध्यान सुनिएगा, मैं थोड़ा सा मजाक तो बना रहा हूँ बट प्लीज लिसन टू इट वेरी केयरफुली। मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते पढ़ाते आई गो मैड, और मैंने अपने आई टेयर ऑफ माय क्लोथ्स एंड आई जंप ऑन माय डाइनिंग टेबल, आई स्टार्ट डांसिंग, एंड उसके बाद अपनी जेब से मैंने पिस्टल निकाली और ठक से मम्मी को गोली मार दी। तो जब मुझ पे एफआईआर लॉन्च हुई तो मैंने डिफेंस लिया सेक्शन 84 का कि मैं, और भाई क्योंकि तुम्हें क्या समझाया था कि एट द टाइम ऑफ द डूइंग ऑफ द एक्ट it should be proved that I was of unsound mind. अब ये काम तो कोई आम आदमी तो करेगा नहीं, तो जो पागल होगा वही ये सब करेगा। तो जिस समय मैं एक्ट कर रहा था उस समय मैंने ठक से गोली निकाली और मेरी मम्मी को गोली मार दी। और फिर जब मेरे पे एफआईआर लॉन्च हुई तो मैंने अपने डिफेंस में सेक्शन 84 का डिफेंस लिया, और एविडेंसेस के तौर पे आप लोग तो विटनेस हो ही मेरे, आप लोग तो देख ही रहे हो, मैं जितने भी लोग 70-80 जितने भी लोग आए हुए हैं यहाँ पर, वो सब तो देख ही रहे हैं कि मैं पढ़ाते पढ़ाते पागल हो गया। तो द पॉइंट इज कि अब ऐसे तो फिर ऐसे तो हर कोई अक्यूज गोली मार, कोई कोई ऑफेंस करने से पहले कोई पागल बनने का ड्रामा करे और उसके कोई ऑफेंस कर दे और डिफेंस ले ले 84 का, ऐसे तो हर कोई करना शुरू कर दे। If this example is correct, then everybody will start doing this, कि कोई भी ऑफेंस करने से, मर्डर करने से पहले पागल होने का ड्रामा करे अपने सोसाइटी में, और उसके बाद थक से जेब से बंदूक निकाले किसी को गोली मार दे। पॉइंट ये है, प्लीज अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। अगर मुझे
अगर मुझे अनसाउंडनेस की बीमारी पहले से है, अगर मुझे अनसाउंडनेस की बीमारी पहले से है और उसकी वजह से या उसके सिम्टम्स कुछ ऐसे हैं कि I became unsound and hence I was incapable of knowing the nature of the act and then I shot and killed my mom, then only I will get the defense. Then only I will get the defense. फिर से रिपीट कर रहा हूं, मुझे अगर अनसाउंडनेस की बीमारी पहले से है और उसकी वजह से, उस अनसाउंडनेस की बीमारी की वजह से या उसके सिम्टम्स कुछ ऐसे हैं और उस समय मुझे वो सिम्टम्स हुए और उसकी वजह से आई बिकेम अनसाउंड and I was incapable of knowing the nature of the act, it is only then I should be given the defense of section 84. मतलब मुझे पहले से मुझे फिट्स पड़ते हैं और बाय चांस मुझे फिट्स पड़ रहे थे, बाय चांस नहीं, मुझे फिट्स पड़ रहे थे और फिट्स के पड़ने के सिम्टम ये है कि मैंने टेबल पे खड़ा हो गया, अपने कपड़े फाड़ लिए और अपनी जेब से पिस्टल निकाल के गोली मार दी। उस फिट्स के सिम्टम्स ये हैं that I did what I did under the influence of the symptoms of fits. It is, and because of that I was incapable of knowing the nature of the act, and it is only then I will be given the defense of section 84. वो लॉजिक भी तो है ना यार, लॉजिक भी तो है। लॉजिक क्या कहता है? What is, because there's a logic behind it. The logic is, and the logic behind me becoming incapable of knowing the nature of the act, because I was under the influence या symptoms बोल लो, symptoms of Excuse me, sir. just hold on, symptoms of the fits and या कोई भी अनसाउंडनेस माइंड की जो डिजीज है मेरे पास, उसके सिम्टम्स के अंदर रहते हुए मैंने आई शॉट एंड किल्ड। तो therefore a person, ध्यान सुनिएगा प्लीज, therefore accused person नहीं बोलूंगा, therefore an accused will get the defense of unsoundness of mind only when he is able to prove that वो पहले से, that from earlier he was suffering from any mental disease, and उस डिजीज का सिम्टम कुछ ऐसा हुआ जब मैंने वो एक्ट किया। इसको बोलते हैं by the reason of unsoundness of mind। by the reason of unsoundness of mind मेडिकल ये होती है कि जिस समय मैंने वो एक्ट किया, देखो ये बात तो तुम्हें क्लियर हो चुकी है कि एट द टाइम ऑफ डूइंग इट का मतलब उससे पहले, उस एक्ट से पहले नहीं, उस एक्ट के बाद नहीं, जिस समय वो मैंने एक्ट किया, या एक्ट नहीं बोलता मैं, ऑफेंस बोल रहा हूँ उसको। तो जिस समय मैंने वो ऑफेंस किया उस समय मुझे कोई अनसाउंडनेस ऑफ माइंड होना चाहिए। तो और एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय द रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, देखो लिखा भी तो है ना, एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय द रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, कि उस अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का एक सिम्टम ये है कि उस सिम्टम के इन्फ्लुएंस में मैंने वो ऑफेंस कर दिया। एक सेंटेंस लिखिए प्लीज, बाय द रीजन ऑफ, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखिएगा, बाय द रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। बाय द रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड शुड बी रिटन इन इन्वर्टेड कॉमर्स। By the reason of unsoundness of mind under section 84 of the IPC, by the reason of unsoundness of mind under section 84 of the IPC relates to
relates to medical unsoundness. Relates to medical unsoundness. That is the accused must prove. That is the accused must prove. Accused must prove first. The accused must prove first. Yes, ऐसे करो. Accused must prove full colon next line number 1. That the accused must prove full colon next line number 1. First point. First, that he was suffering from any mental disease. That he was suffering from any mental disease of unsoundness of mind. That he was suffering from any mental disease of unsoundness of mind. That he was suffering from any mental disease of the unsoundness of mind. And it was due to that disease. And it was due to that disease. And it was due to that disease that the accused. And it was due to that disease that the accused, at the time of doing the act, that the accused, at the time of doing of the act, at the time of doing of the act, became incapable of knowing the nature of the act, became incapable of knowing the nature of the act, became incapable of knowing the nature of the act, etc. Full stop. The accused has to prove. The accused has to prove. The accused has to prove. Second point. नहीं हाँ second point कर लो. Yes, second point. The accused has to prove the symptom. Underline करना है symptom को. The accused has to prove the symptom of the said mental disease. The accused has to prove the symptom of the said mental disease at the time of doing of the act. 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 Comma. He showed the same symptoms. At the time of doing of the act, he showed the same symptoms. देखो, लिख लिया? Yes, sir. ठीक है. देखो, अब मैं तुम्हें ये बता चुका हूं कि मेडिकल अनसाउंडनेस प्रूव करनी पड़ेगी आपको. That you have to prove medical unsoundness. और तब वो कब, जिस समय वो आप एक्ट कर रहे हो. तो मान लो, तो एक एग्जांपल ले रहा हूं. तो मान लो मुझे उस समय फिट्स पड़े, बट उसका मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है. मेरे पास उस समय कोई प्रूफ नहीं है ऐसा, मतलब प्रूफ इन द सेंस डॉक्टर का कोई सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास. ये कभी-कभी क्या होता है कि आपको कोई अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की बीमारी होती है, बट आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो बट ऐसा वो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देता दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम सो एंड सो डिजीज. और कभी-कभी क्या होता है कि आपको सर्टिफिकेट होता है कि मुझे ये सो एंड सो बीमारी है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं होता उनकी बीमारी का. और अगर मान लो उसी बीमारी के सिम्टम के कारण आपने कोई ऑफेंस कर दिया है, मेरी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? उसी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के सिम्टम की वजह से आपने वो एक्ट कर दिया है, तो कोर्ट को कैसे बताओगे? क्योंकि ये तो आप बोल रहे हो, ऐसे तो 100 लोग बोल सकते, ऐसे तो हर अक्यूज्ड बोलेगा कि मुझे बीमारी है, तो उसको डिफेंस चाहिए.
उसका प्रूफ कैसे आएगा? मेरा डॉक्टर सर्टिफिकेट So तो उसकी लेकर आओगे कहीं से। medical एक सेकंड, history होगी कुछ। एक सेकंड बता रहा हूँ। डॉक्टर का सर्टिफिकेट तो लेकर आओगे कहीं से। The doctor should certify that Jay suffers from so and so epilepsy, and the symptom is that he will at times he will get fits. तो मान लो मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं था। So let's suppose मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं था और मैंने विदाउट सर्टिफिकेट मैंने ये जो ड्रामा करा और गोली मार दी, तो कोर्ट के पास अगर जाएंगे ना तो कोर्ट मुझे 2 से 3 महीने के लिए मेंटल असाइलम भेजेगा। कोर्ट विल सेंड मी for 2-3 months to mental asylum, or in that mental asylum I'll be under the supervision, or supervision नहीं बोलना चाहिए, and I'll be under the observation of the doctor, and it is this doctor who will penultimately give certificate that yes, Jay suffers from epilepsy. It is this doctor who will give the certificate that yes, that Jay suffers from epilepsy. मुझे ऑब्जर्व करेगा 2-3 महीने प्रॉपरली। अगर आपके पास पहले से सर्टिफिकेट नहीं है तो अगर और आपने याद कर लिया है तो कोर्ट के पास जाओगे तो कोर्ट आपको 2 से 3 महीने के लिए, मतलब एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 से 3 महीना इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता, 1 महीना का भी काम हो जाता है, कभी कभी 3 महीने भी लग जाते हैं, बट एक ब्रॉड टाइम बता रहा हूँ। 2 से 3 महीने के लिए आपको मेंटल असाइलम भेजेगी, वहां डॉक्टर के सुपरविजन में आप रहोगे और फिर वो डॉक्टर रिपोर्ट बना के आपको देगा, और वो कोर्ट में भी बुलाया जाएगा उस डॉक्टर को। The doctor will be called in the court also, and the judge will ask from the doctor face to face कि ये रिपोर्ट आप ही ने बनाई थी, आपकी क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, वो सब बताएगा जो उसने रिपोर्ट में लिखा है। अगर आपके पास डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं है तो, डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं है तो, बट जरूर चाहिए जरूर, ये याद रखना, यू रिक्वायर इट बिकॉज यू हैव टू प्रूव योर मेडिकल अनसाउंडनेस। You have to prove your medical unsoundness. यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. किसको डाउट है जल्दी पूछो। Yes, sir. Sir, medical history work नहीं करेगी? Sir, like you told us that. एक जस्ट होल्ड ऑन, मेडिकल हिस्ट्री, हाँ मेडिकल हिस्ट्री, बट देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ सर्टिफिकेट। एक होता है प्रिस्क्रिप्शन, आप बात कर रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन की, कोर्ट प्रिस्क्रिप्शन नहीं मानता, कोर्ट मांगेगा सर्टिफिकेट डॉक्टर का। सर जैसे मेडिकल हिस्ट्री होती है कि क्या क्या हुआ है। अग्रीड, बट वो मेडिकल हिस्ट्री की वजह से मेडिकल हिस्ट्री कैसे होगी? प्रिस्क्रिप्शन पे अब आपकी आज डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, 1 हफ्ते बाद फिर होगी, 3 हफ्ते बाद फिर होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो प्रिस्क्रिप्शन देता है आपको, अपनी नॉर्मल इनफॉर्मली प्रिस्क्रिप्शन देता है। एक सर्टिफिकेट, एक प्रॉपर फॉर्मल सर्टिफिकेट होता है, वो फॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन तो आजकल हर डॉक्टर बना देगा पैसे लेकर, सर्टिफिकेट हर कोई नहीं बनाता, क्योंकि सर्टिफिकेट में अकाउंटेबिलिटी हो जाती है उस डॉक्टर की। ओके ठीक है सर। हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ जी सर जैसे किसी पर्सन को डिप्रेशन है और उसको पता है कि उसके एक्ट से सामने वाले को हर्ट हो सकता है या वो मर भी सकता है, बट इन एक्सट्रीम एंगर वो उसको मार देता है, तो इन दैट सिचुएशन अब यू सी अगेन ममता, द पॉइंट इज, हाँ डिप्रेशन का पॉइंट मैं तुम्हारा पढ़ लिया था, मैं तुम उसी पॉइंट पे भी आ रहा था। डिप्रेशन में अगेन भाई, अगर कोई चाहे डिप्रेशन हो, चाहे एपिलेप्सी हो, चाहे इंसोम्निया हो, कुछ भी हो, अब डिप्रेशन इज आल्सो टेम्परेरी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। पॉइंट इज कि अगर आप डॉक्टर से रिपोर्ट ले सकते हो और सर्टिफिकेट ले सकते हो और डॉक्टर ये प्रूव कर सकता है कि आपने जो एक्ट किया वो नॉर्मली डिप्रेशन का एक सिम्टम है और आपने उसी सिम्टम के इन्फ्लुएंस में वो काम किया, ऑफेंस किया, तो बिल्कुल आपको डिफेंस मिलेगा। सर मैं आ गई सर, बट माय पॉइंट इज कि सर बट उस पर्सन को वो पता है कि उसके एक्ट से ये प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब आई हैव कैप्ट कि ये चीज उसको नॉलेज में है, फिर भी वो कर रहा है। किसको नॉलेज में? मुझे कि मेरी मम्मी को? अक्यूज्ड को ये नॉलेज में है कि मतलब उसके इस एक्ट से ये हो जाएगा, बट इन एक्सट्रीम एंगर वो कर देता है, फिर भी कर देता है। नहीं अब तुम बात नहीं तुम, मैं समझा नहीं तुम क्या बोल रही हो। सर जैसे किसी इंसान को डिप्रेशन में बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, कभी वो ठीक बहुत है,
ज्यादा खुश हो जाता है या कभी बहुत ज्यादा ठीक दुखी हो है, जाता है, एट ठीक टाइम्स है, वो बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता है, तो उसको ये ठीक चीज है। पता है कि सामने वाले को उसने हर्ट किया या उससे वो मर भी सकता है, वो स्टिल उस चीज को कर देता है। तो उस सिचुएशन में हाँ, मैं बता तो रहा हूँ। अगर उस देखो, अब जैसे मान लो मेरे, ठीक है, मैं तुम्हारा एग्जांपल समझ गया। मेरे एग्जांपल में मान लो मुझे मालूम था कि मेरे जेब में पिस्टल लोडेड है, और फिर मुझे आई वाज केपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, और फिर भी गोली मार दी, और फिर गोली मारने के बाद यस, डिफेंस ले रहा हूँ 84 का। नो भाई सर, गोली, दैट पर्सन इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, बट उसको आई ये एम भी ऑल्सो पता है कि सफरिंग। अगर वो अपने आप को उससे हर्ट हो जाएगा और सामने वाला भी हर्ट हो जाएगा, बट वो ऐसा स्टेप फिर भी ले लेता है एंगर में। हाँ, तो उसके बाद वो डज ही प्लीड गिल्टी कि वो डिफेंस मांग रहा है यस, 84 का? यस, नहीं, इज ही क्लेमिंग डिफेंस? yes sir, is अगर pleading for अगर not guilty. हाँ, तो अगर इफ ही इज क्लेमिंग डिफेंस ऑफ अंडर ऑफ सेक्शन 84, देन उसको मेडिकली सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा। कोर्ट तुम्हारी बात Okay, क्यों सुनेगी? कोर्ट तुम्हारी बात क्यों सुनेगी? but यू आर नॉट द sir, यू आर नॉट द स्पेशलिस्ट, द डॉक्टर इज द स्पेशलिस्ट। डॉक्टर को अपने सर्टिफिकेट में लिखना पड़ेगा कि जो काम ममता ने किया वो एक आम सिम्टम है डिप्रेशन का, और उसके वजह से जो ममता ने ऑफेंस किया वो बनता है करना। Yes, sir. Excuse me, sir. हाँ, जल्दी पूछो यार। Sir, for instance, you told us that the accused has committed any offense and he is claiming the defense of this unsoundness of mind. And for that, he is not having availability of medical certificate. Now he is sent to a mental asylum for getting the, for checking his behavior, and was kept under the proper observation. Or if someone is already having medical certificate, then what will happen to him? अगर if you already have a mental certificate, then show it to the court, and whosoever doctor has made that medical certificate, he'll be called to the court to prove, to testify in front of the judge कि whatever that he has made this certificate, and in normal circumstances this is what is the symptom of the disease from which you're suffering from. Sir, for instance, there was that medical certificate was made earlier and it has been forged. And what will there be any verification, any specific Yeah, verification obviously, for that medical yes, certificate? Is obviously, that obviously. medical certificate valid or not? No, अगर सर्टिफिकेट आपने फर्जी बना लिया है ना, that you have forged a certificate, any which way the doctor will be called to the court, and he has to, in front of the judge, Oh, he has to testify, मतलब give okay, evidence, sir. give evidence. Section 191 in IPC, sorry, 191 IPC says अगर आपने कोई false evidence दिया है कोर्ट में तो आपको 7 साल की सजा मिलेगी। तो he cannot lie. Okay, sir. तो अभी तक मैंने जो तुम्हें पढ़ाया उसकी एक शॉर्ट समरी अगर मैं तुम्हें बताऊं तो क्या होगी? नंबर 1, सेक्शन 105 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, उसकी रिक्वायरमेंट है कि कैसे कोर्ट मानेगा नहीं। अक्यूज्ड अगर क्लेम कर रहा है प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट, तो अक्यूज्ड के पास बर्डन है प्रूव करने का दैट he was suffering from, that he is claiming that he is claiming the defense of private defense. The court shall presume that no such circumstances occurred. It is upon the accused to prove. Section 105 Indian Evidence Act. Number two, he should have been unsound mind. He should have been of unsound mind at the time of doing of the act. He should have been unsound mind at the time of doing of the act. Number 3, there has to be a medical unsoundness. There has to be a medical unsoundness under section 84. Only then will you get the defense. Only then will you get the defense. वो भी कब? जब आप प्रूव कर पाओ इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। समझ में आ गया? तो ये अब तक शॉर्ट समरी है। दिस इज द
short summary of section 84. सर अब लीगल I think अनसाउंडनेस को कैसे शो करेंगे? बताता हूँ मैं खत्म थोड़ी ना किया सेक्शन। समझ में आ गया। अब मेरे ख्याल से इसमें एक दो तीन पॉइंट और बचे हुए हैं, अब इसको मिटा रहा हूँ। देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, तुम आई डोंट, सेक्शन क्या बोलता है? सेक्शन सेज नथिंग इज एन ऑफेंस which is done by a person who at the time of doing it nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by the reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act. ये लिखा है इन्होंने, incapable of knowing the nature of the act. मैं यही रुक रहा हूं अब। Nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by the reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act. मेरा आपसे एक सवाल है, उन्होंने इतनी बड़ी अंग्रेजी लिख दी यहाँ पर, knowing the incapable of knowing the nature of the act. Simply ये भी तो लिख सकते थे that nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by the reason of unsoundness of mind did not know the nature of the act, did not know the nature of the act or what he was doing was wrong or contrary to law. इतना ये क्यों लिखा? Why did they write this? देखो did not know is very subjective. Did not know is very subjective. I did not know. Subjective मतलब it is subjective to my mind. ये ध्यान सुनना। Did not know is subjective. Subjective why? It is subjective to your mind. You can tell. मैं जैसे मेरा एग्जांपल ले लो, तो मैंने जब बोला, अगर जैसे मैंने गोली मार दी, तो अगर ये डिड नॉट नो लिखा होता ना लॉ में, तो मैं बोलता मुझे मालूम ही नहीं था। तो सब्जेक्टिव है ना, मेरा माइंड कह रहा है, मेरा माइंड ने कोर्ट में बयान दिया कि आई डिड नॉट नो। तो पॉइंट है कि अब जज कि मैं अपना माइंड खोल के जज के सामने थोड़ी ना रख दूंगा और तब जज पड़ेगा कि मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं। तो ये सब्जेक्टिविटी है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव, वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव। एट द मोस्ट आप क्या कर सकते हो? एट द मोस्ट बहुत ज्यादा कोई ग्रूसम केस हो गया है तो आप एट द मोस्ट नार्को एनालिसिस करा लो या ब्रेन मैपिंग करा लो। सर वो इलीगल है ना अभी? बता रहा हूँ, दो इट इज इलीगल, बट इंडियन एविडेंस एक्ट में कभी कभी अंडर वेरी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, जैसे आरुषि मर्डर केस में हुआ था नार्को एनालिसिस, तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में हाई कोर्ट अलाउ कर देती है कभी कभी, बट नेचुरली इट इज इलीगल। उसमें एक जजमेंट है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका की, तो तुम लोगों को पढ़ाई है कि नहीं? अगर जब पढ़ाएंगे इंडियन एविडेंस एक्ट तो तुम्हें शायद बताएंगे सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका की जजमेंट है, बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। और नार्को सर सिर्फ कॉरबोरेटिव एविडेंस के लिए है ना नार्को एनालिसिस तो? हाँ ऑब्वियसली एनीवेज कमिंग बैक, पढ़ाएंगे तुम्हें इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ाएंगे तो तुम्हें बताना चाहिए कॉलेजेस में सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। बट एनीवेज कमिंग बैक, एट द मोस्ट नार्को एनालिसिस करा लो या ब्रेन मैपिंग करा लो, बट वो भी इलीगल है। तो मैं अपने माइंड जज के सामने खोल के रख सकता नहीं हूँ। तो आई डिड नॉट नो, it becomes very difficult to prove. I did not know, it becomes difficult to prove. At the most, please listen to it very carefully. At the most, what I can prove is, number one, surrounding circumstances. Second, the evidence of the conduct that I did. जो मेरा कंडक्ट है उसका एविडेंस दे सकता हूँ। प्लस नंबर 3, मेडिकल जो मुझे डिजीज है, द मेडिकल डिजीज विच आई एम सफरिंग फ्रॉम।
तो कोर्ट एक आम आदमी को, एक रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन को मेरी जगह पे डालेगा उसी सेम सर्कमस्टांसेस में, उसी सेम कंडक्ट में, उसी सेम मेडिकल डिजीज में। और कोर्ट ही समझेगा, कोर्ट ही सोचेगा that if a reasonable person, ध्यान सुनिएगा प्लीज, कोर्ट will presume that if a reasonable person had been placed in the same manner and thereby would he have acted in the same manner? तो तब कोर्ट एनालाइज करेगा कि जो एक्ट जय ने किया वो 84 में फॉल करता है नहीं करता। I did not know becomes very impossible to prove. Point is to relax the burden of proof. तो देखो इम्पॉसिबल, कोर्ट आपको कभी भी कुछ इम्पॉसिबल प्रूफ करने को नहीं दे सकता। अब नार्को एनालिसिस ये तो वैसे भी इलीगल है, नार्को एनालिसिस तो वैसे भी इलीगल है, तो और ये डिड नॉट नो सब्जेक्टिविटी है। तो पॉइंट इज कि हाउ विल यू प्रूव डिड नॉट नो, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव डिड नॉट नो। दिस बिकम्स वेरी इजी टू प्रूव, sorry, this becomes very easy to prove. Surrounding circumstances, evidence of the conduct and medical disease becomes easy to prove. Hence they are writing incapable of knowing the nature of the act, because when they write incapable of knowing the nature of the act, ये तीन चीजें प्रूव करनी बहुत इजी हो जाती है। डिड नॉट नो से डिड नॉट नो आप प्रूव नहीं कर पाओगे कभी भी। एक सेंटेंस लिखिए प्लीज, प्लीज राइट डाउन वन सेंटेंस। In order to relax the burden of proof, in order to relax the burden of proof, they have used incapable. They have used incapable in order to relax the burden of proof. They have used incapable. They have used incapable instead of did not know. They have used incapable instead of did not know. They have used incapable instead of did not know. Incapable को inverted commas में डाल लीजिए और did not know को भी inverted commas में डाल लीजिए। Full stop. Next line. The accused has the burden of proving. The accused has the burden of proving. The accused has the burden of proving the incapability. The accused has the burden of proving the incapability of knowing the nature of the act. The accused has the burden of proving the incapability of knowing the nature of the act. Knowing the nature of the act. If he was required, knowing the nature of the act, if he was required to prove that, he actually did not know the nature of the act, etc. He actually did not know the nature of the act, etc. And thereby it becomes practically impossible, for him to prove the alleged defense. Practically impossible for him to prove the alleged practically impossible for him to prove the defense under section alleged काट देना. Practically impossible for him to prove the defense under section 84.
full stop, and thereby full stop nahi, and thereby the word inverted commas में लिखना incapable of knowing the nature of the act, thereby the word नहीं है, thereby the phrase inverted commas में incapable of knowing the nature of the act is used instead. Full stop, next line. The court in such a case will conduct the test of reasonable person. The court in such a case will conduct the test of a reasonable person. The court in such a case will conduct the test of a reasonable person and will infer whether a reasonable person under the same circumstances would have been incapable of knowing the nature of the act. Full stop. If yes, the same would be imputed upon the accused. If yes, the same would be imputed upon the accused. If yes, the same would be imputed upon the accused. Incapable of knowing the nature of the act. Incapable of knowing ये अब बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट होने वाली है, तो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल. Incapable of knowing the nature of the act. Incapable of knowing the nature of the act, or that what he was, I hope आप सब लिख रहे हो साथ साथ, that what he was doing was either wrong or contrary to law. Was either wrong or contrary to law. इस सेक्शन में अगर आपकी थोड़ी सी ग्रामेटिकल इंग्लिश ठीक है अगर, तो देखिए क्या लिखा है. he मतलब the accused, he was incapable of knowing the nature of the act. तो अगर मान लो वो फंस गया, अगर मान लो जैसे मेरे वाले एग्जांपल में 84 में मैंने गोली मार दी और डिफेंस ले लिया 84 का, तो या तो मैं ये प्रूफ कर दूं नेचर ऑफ द एक्ट, तो जो मैंने तुम्हें अभी पढ़ाया वो प्रूफ कर दूं, और ये प्रूफ कर दूं या ये प्रूफ कर दूं. और लिखा है ना, ये या ये और. तो मान लो मुझसे ये प्रूव नहीं हो पाया, नेचर ऑफ द एक्ट, कि मैं इनकेपेबल था टू नो द नेचर ऑफ द एक्ट. मान लो मैं मेडिकल वाला जो मैंने एविडेंस देना था वो प्रूव नहीं हो पाया मुझसे. अब ऑप्शन है मेरे पास, ये तो प्रूव नहीं हो पाया, तो अब इसकी तरफ चलते हैं, शायद ये प्रूव हो जाए मुझसे, क्योंकि दोनों में से एक चीज प्रूव करनी पड़ेगी आपको अगर आपको 84 का डिफेंस लेना है. तो ये और ये. अब आप देखिए क्या लिखा है, दैट incapable of knowing that what he was doing. मैं इसको पूरा और तक बाईपास कर दिया है. इसको ये यहां तक मैं पूरा बाईपास कर दिया. देखिए
लेट मी जस्ट डिलीट इट. हाँ, और तक पूरा मैंने बाईपास कर दिया है. इनकेपेबल ऑफ नोइंग, इनकेपेबल ऑफ नो, इसको भूल जाना प्लीज, जस्ट फॉरगेट इट once for a while. Incapable of knowing that what he was doing was either wrong or contrary to law. मुझे तुम लोग ये बता दो बस छोटी सी बात कि 84 में अगर मैं ये प्रूव नहीं कर पाया, मान लो if I am not able to prove this under section 84, if I am not able to prove this under section 84, then अगर मैं सिर्फ इतना प्रूफ कर दूं तो क्या डिफेंस मिलेगा? Yes. हाँ है ना, मैं जवाब देना पहले. अगर नो मैं सर. अगर सुनो, मेरी पहले बात सुन लेना ध्यान से. अगर मैं ये प्रूव नहीं कर पाया और ये प्रूव कर दूं तो क्या डिफेंस मिलेगा? Yes, sir. हाँ ठीक है, मिल जाएगा. और लिखा है ना, Yes, sir. और जो लिखा है, तो ये प्रूफ कर लो या 1 प्रूफ कर लो या 2 प्रूफ कर लो, आपकी मर्जी है. दोनों में से कोई भी एक चीज प्रूफ कर लो. तो मैं अगर 1 नहीं प्रूफ कर पाया तो मैं 2 प्रूफ कर देता हूं. चलो 2 पे आ जाओ. 1 तो छोड़, 1 समझा दिया है, 1 इज आउट ऑफ द पिक्चर नाउ. 2 पे आ जाओ. 2 में that what he was doing was either wrong or contrary to law. Wrong was either wrong. Wrong का मतलब होता है morally wrong. Wrong means morally wrong or contrary to law. देखो, इंग्लिश का इंटरप्ले है. मैं पूछूंगा तो तुम लोग शायद बता नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हें शायद मालूम नहीं होगा, तो मैं टाइम वेस्ट हो जाएगा. इससे बेटर मैं ही बता देता हूं. अगर अक्यूज्ड नंबर 1 नहीं प्रूव कर सका तो उसके पास ऑप्शन है नंबर 2 प्रूव करने का. अब किस खेल देखो शब्दों का. इसमें भी और लिखा हुआ है, इसमें भी और लिखा हुआ है. तो आप लोग तो मुझे ये बोलोगे कि सर यहाँ तो पहले आपने समझाया था कि ये जो और है, ये तो 1 नहीं प्रूव कर सके तो 2 प्रूव कर लो. तो 2 में भी तो फर्दर हमें ऑप्शन मिल गया, या मॉरल रॉन्ग प्रूव कर लो या कॉन्ट्ररी टू लॉ प्रूव कर लो. बोल सकते हो ना मुझे ऐसा? यस सर. हाँ, यस Yes, sir. बोल सकते हो क्योंकि भाई और लिखा है ना. और मतलब ये या ये ऑप्शन है आपके पास. तो 1 नहीं प्रूव कर सकते तो 2 प्रूव कर लो. चलो 1 आप मान लो आपने 1 नहीं प्रूव कर पाए तो 2 पे आ गए. 2 में फर्दर एक और लिखा हुआ है, तो मतलब या तो आप ए प्रूव कर लो या बी प्रूव कर लो. लेकिन ऐसा नहीं है. क्यों? क्योंकि ये वर्ड ईदर लिखा हुआ है यहाँ पर. जब भी इंग्लिश लैंग्वेज में स्पेशली इन लॉ ईदर और जहां पर लिख दिया गया हो ना साथ साथ, वहां पर मैंडेटरी है दोनों चीजें प्रूव करना. ऑप्शन यहां अवेलेबल नहीं है आपको. यू डोंट हैव एन ऑप्शन to prove either moral wrong or contrary to law. You have to prove both. You have to prove both. ऑप्शन सिर्फ 1 और 2 में ही है बस. ऑप्शन सिर्फ 1 में और 2 में ही है बस. ऑप्शन सिर्फ 1 और 2 में ही है बस. फर्दर 2 के अंदर फर्दर कोई ऑप्शन नहीं है. आपको दोनों चीजें प्रूव करनी पड़ेगी, ए भी और बी भी. ये ईदर और का गेम प्ले है लॉ में. अब आप आगे चलो. ये पॉइंट क्लियर हो गया ना तुम्हें कि Yes. अगर सर, आप 1 ये- प्रूव नहीं कर पाए, रुक जाओ. अगर आप 1 प्रूव नहीं कर पाए तो 2 में आपको दोनों चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी. दैट द एक्ट वाज मॉरली रॉन्ग एंड इट वाज कॉन्ट्ररी टू लॉ. अब आगे इसी के ये प्रिज्यूमिंग कि तुम्हें समझ में आ गया तो आगे चल रहा हूं. सर इसको एक रुक जाइए प्लीज. लॉ में एक पॉइंट समझ लेना प्लीज, और आगे से नहीं समझाऊंगा. लॉ में अगर ये ईदर और है ना,
ये लॉ छोड़ दो, इस सेक्शन की बात कर लो। एक सेंटेंस लिख लीजिए प्लीज, एक सेंटेंस लिख लीजिए, तुम भूल जाओगे अदरवाइज। इन सेक्शन 84 कॉमा अंडर पार्ट 2, ये पार्ट 2 अंडर, वैसे अंडर पार्ट 2 कुछ है नहीं, बट ये मैं पार्ट 2 यहाँ इसको रेफर कर रहा हूँ, सॉरी इसको नहीं, अंडर पार्ट 2 ये है, ये मैंने जो खुद बाइफरकेशन की थी, लॉ ने ऐसे सेक्शन ने बाइफरकेशन नहीं की है, तो मैं समझाने के लिए मैं लिखवा रहा हूँ। अंडर सेक्शन 84 या इन सेक्शन 84 अंडर पार्ट 2 the word either inverted commas में लिखना either, the word either and the word or inverted commas में, the word either and or inverted commas में has to be read as inverted commas open and has to be read as inverted commas open and, इसको आप and पढ़ोगे, दिस एंड दिस दोनों चीजें जरूरत है आपको पार्ट 2 में। मॉरल रॉन्ग भी प्रूव करना पड़ेगा और कॉन्ट्री टू लॉ है ये भी प्रूव करना पड़ेगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा ना एक दूसरे के फिर? ऑब्वियसली अब एग्जांपल लेके समझा दूंगा, लेकिन देखो मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ। अब मैं सुबह से खोज रहा था पर मुझे मिली नहीं, बट चलो तो शायद तुम्हें मिल जाएगी। एक जजमेंट है, एनीबडी फ्रॉम कैलकाटा हियर? कोई कैलकाटा से है यहाँ पर? कोई भी नहीं है कैलकाटा से क्या? चलो एनीवेज, एक जजमेंट है, जजमेंट का नाम मैं लिख रहा हूँ, नशरुद्दीन, NASHIRUDDIN, नशरुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, कैलकाटा हाई कोर्ट। नशरुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, कैलकाटा हाई कोर्ट। इसका ईयर मुझे नहीं मिल रहा था, सुबह से ब्लडी नहीं मिल रहा मुझे इसका ईयर, सुबह से मुझे इसका ईयर नहीं मिल रहा है। और देखो मतलब मेरी तारीफ तुम लोगों को करनी चाहिए कि ये जजमेंट गलत है, दिस जजमेंट इज रॉन्ग। बताता हूँ कैसे, आई विल एक्सप्लेन यू, विल गिव यू प्रॉपर जस्टिफिकेशंस कि ये कैलकाटा हाई कोर्ट की जजमेंट गलत है। बताता हूँ कैसे, देखो। एनीवेज, हुआ क्या, सबको मेरी आवाज ठीक से आ रही है? पहले ये बताओ। यस सर। ठीक है। इस जजमेंट के फैक्ट्स बता रहा हूँ। एक आदमी था and he was suffering from some sort of mental unsoundness. There was this guy who was suffering from some sort of mental unsoundness. एक दिन सोते सोते उसको एक सपना आया। One day while he was sleeping, he dreamt, and the dream was कि भगवान उसके सपने में आए हैं and भगवान ने उसको बोला है that you have to sacrifice your son. अपने आप को भगवान के सपने में आए हैं और भगवान जी ने उसको बोला है कि तुझे अपने बेटे की आहुति देनी पड़ेगी अगर तू जिस गांव में रह रहा है उस गांव में बारिश आनी है। तो उस गांव में बारिश नहीं आ रही थी बहुत टाइम से, तो एक सोते सोते एक दिन उसको रात को सपना आया और उसके सपने में भगवान जी आए और उसको लगा कि भगवान जी ने उसको बोला है कि अगर तू चाहता है कि तेरे गाँव में बारिश आए तो तू अपनी बेटी की आहुति दे दे, जान से मार दे अपने बेटे को। तो उसने क्या किया, सुबह उठा, इन द मॉर्निंग ही गॉट अप, ही वोक हिज सन अप, अपने बेटे को उठाया उसने, उसके लिए नए नए कपड़े लेकर आया, वो उसको मार्केट ले गया, उसके लिए उसने नए कपड़े खरीदे। खरीदने के बाद उसको ही टुक हिम टू अ पॉन्ड, एक पॉन्ड के पास लेके गया, गांव में था, पॉन्ड के पास लेके गया, उसको नहलाया, उसको नए कपड़े पहनाए, मॉस्क ले गया, उसके बाद टुक हिम टू द मॉस्क और वहां जाके इसका गला काट दिया बच्चे का अपने। He killed his son, slit his throat, and finally killed his son. Now, after when he sort of killed his son, अपने बेटे को जब इसने मार दिया, तो उसके बाद उसने डेड बॉडी वहीं छोड़ दी और उसकी जो गर्दन थी, जो सर था पूरा, उसके साथ खेलने लग गया, started playing with it. खेलने के बाद वो गर्दन को उसने वहीं छोड़ दिया, and he was coming back to the village. उसके बाद वो गांव वापस आ रहा था। ऑन द वे, रास्ते में उसको उसके अंकल दिखे
he met his uncle, और वो अंकल को बताने ही वाला था कि उसने क्या किया है कि सामने उसको एक पुलिस ऑफिसर दिख गया। मेरी बात ध्यान सुनना, ये पूरे फैक्ट्स हैं केस के, कि अंकल को वो पूरा बताने ही वाला था कि उसने क्या किया है कि इतने में ही अचानक उसको एक पुलिस ऑफिसर दिख गया। जैसे ही उसने पुलिस ऑफिसर को देखा, वो फटाफट जाके छुप गया कहीं पर, फटाफट वो जाके छुप गया। छुपने के बाद जैसे वो पुलिस ऑफिसर गया, ये वापस आया बाहर, जहां भी छुपा हुआ था, वापस आया बाहर, और फिर इसने अंकल को अपने बताया कि इसने क्या किया। तो उसने अंकल को बताया अपने कि मैंने अपनी बेटी की आहुति चढ़ा दी है इस गांव के लिए, ताकि इस गांव में सुख शांति रहे और बारिश आती रहे। अब जब इसने अंकल को बताया कि आई हैव सैक्रिफाइस्ड माय सन फॉर द विलेज सो दैट द रेन कम्स टू द विलेज, अब ये बताया। फाइनली जब ये मैटर कोर्ट में पहुंचा, तो ट्रायल में दिस गाय नसरुद्दीन sought the defense of section 84 IPC in unsoundness of mind. Ajo bhai, let's see whether he will get the defense of section 84 or not. Let's see. Pehla point, he was incapable of knowing the nature of the act. Knowing the nature of the act. पहला point यही था IPC में जो मैंने पढ़ाया था, incapable of knowing the nature of the act, ये पढ़ाया था पहले? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes. incapable of knowing the nature of the act. भाई he knew, sorry, अब ये मेरे हिसाब से प्रूव नहीं हो सकता, because he knew what he was doing. He knew what he was doing. क्यों मालूम था उसको? भाई बकायदा सुबह अपने बेटे को उठाया उसने, मार्केट में ले गया, कपड़े लेके आया और कपड़े उसको प्रॉपर नहलाया धुलाया, बिल्कुल रेडी किया उसने उसको। So he clearly knew the nature of the act, क्योंकि भाई मालूम था ना कि वो क्या करने वाला है। तभी तो उसी एक्ट के फर्दरेंस में उसने मार्केट ले गया, नए कपड़े खरीदे, नहलाया धुलाया, रेडी किया, तैयार किया बिल्कुल उसने उसको। तो ही न्यू द नेचर ऑफ द एक्ट कि उसको अब गला काटने वाला है उसका। तो ये तो नहीं प्रूव हो सका। तो मतलब पार्ट 1 तो ये नेचर ये नहीं प्रूव हो पाया आपसे। तो पार्ट 2 पे आ जाओ। पार्ट 2 में यू हैव टू फर्स्ट प्रूव दैट इट वाज मॉरली रॉन्ग। पार्ट 2 में you have to first prove that it is morally wrong. Something which is morally wrong, मतलब you have to prove the morality. You have to prove the morality. अब नसरुद्दीन जब अपने अंकल को बता रहा था कि उसने अपने बेटे का गला काट दिया है, तो there was no remorse. तो he was remorselessly telling his uncle कि मैंने अपने बेटे का गला काट दिया, फिर मैं थोड़ा सा खेला भी उसके साथ और फिर मार दिया। तो ऑब्वियसली ही वाज वेरी रिमोर्स, कोई सेंस ऑफ पछतावा नहीं था उसको कि मैंने अपने बेटे को मार दिया। तो ऑब्वियसली व्हेन ही वाज रिमोर्स then obviously he did not know the act was morally wrong, because अगर उसको मालूम होता कि एक्ट morally wrong है, तो वो रिमोर्सनेस वाली जो फीलिंग है ना, वो नहीं आती उसको। तो ये तो प्रूव हो गया आपसे, दिस इज प्रूव्ड। अब आ जाओ इस पे, कॉन्ट्ररी टू लॉ पे। माइंड यू मैंने तुम्हें बताया था कि ये दोनों प्रूव होंगे, तो इसमें एंड आता है बीच में, दोनों प्रूव करने पड़ेंगे। अब कॉन्ट्ररी टू लॉ प्रूफ करना है, दैट ही वाज व्हाट ही डिड वाज कॉन्ट्ररी टू लॉ। अब कॉन्ट्ररी टू लॉ मेरे हिसाब से प्रूव इसलिए नहीं हो पाएगा इससे, क्योंकि ये इसका कंडक्ट देखो। तुम लोगों को कल समझाया था कंडक्ट से इंटेंशन इंप्यूट कर सकते हो, समझाया था कि सर नहीं समझाया था? Yes. कंडक्ट देखो, उसका कंडक्ट देखो। अंकल को बताएं, जब अंकल को बता रहा था तो उसने तुरंत पुलिस ऑफिसर को देखा और तुरंत जाके छुप गया। कंडक्ट देखो उसका, और इसकी इंटेंशन देखो जरा, कि तुरंत जाके छुप गया वो। तो ही न्यू कि जो उसने किया दैट वाज कॉन्ट्ररी टू लॉ। अगर नहीं मालूम होता तो वो छुपता थोड़ा ना, वो छुपा इसीलिए ही न्यू कि उसने जो किया वो गलत किया। अगर उसको मालूम होता कि, अगर उसको नहीं मालूम होता तो वो छुपता नहीं कभी भी पुलिस ऑफिसर को देख के।
तो हेंस ये तो प्रूव नहीं हो पाया। तो तीन चीजों में से फाइनली वन, 2 एंड 3, तीन चीजों में से सिर्फ एक ही चीज प्रूव हो पाई। कैलकाटा हाई कोर्ट ने इसको डिफेंस दे दिया और उसको एक्विट कर दिया 84 में। कैलकाटा हाई कोर्ट ने इसको डिफेंस दे दिया और इसको एक्विट कर दिया 84 में। बट तुम खुद कॉमन सेंस लगाओ कि क्या ये सारे एलिमेंट्स प्रूफ कर रहा है क्या? नहीं। प्रूव ही नहीं कर रहा। तो किसी भी एंगल से ये जजमेंट ठीक नहीं हो सकती। तो मुझे ये नहीं मिल पाया कि ये सुप्रीम कोर्ट में गया कि नहीं गया मैटर। अगर ये गया होता तो सुप्रीम कोर्ट उसको ओवररूल कर चुका होता अब तक। तो ये जजमेंट गलत है। दिस जजमेंट इज रॉन्ग एंड दैट इज आई एम 1000% श्योर दैट दिस जजमेंट इज रॉन्ग, 1000%. Now only thing to be cross-checked is whether this was filed as an appeal in the Supreme Court or not. But anyways, that is not important. But this judgment is wrong. But लिख के रख लेना इसके facts, क्योंकि इसके facts से तुम ये तीन चीजें प्रूव कर पाओगे। तो तुम्हें ये मालूम चल जाएगा एटलीस्ट इस जजमेंट से, एटलीस्ट फ्रॉम दिस जजमेंट यू विल कम टू नो कि 84 को प्रूव करने के लिए या तो आप नंबर 1 प्रूव कर लो, या तो आप नंबर 1 प्रूव कर लो या नंबर 2 में दोनों चीजें प्रूव करो, मॉरली रॉन्ग एंड कॉन्ट्री टू लॉ। इसमें ईदर और में ईदर और को एंड पढ़ा जाता है, ये पढ़ लेना बस। और ये जो तुम्हें एक सेकंड रुक जाओ, और ये जो तुम्हें मैंने बताया है ना पूरा कि 1 प्रूव कर लो या 2 में ये दोनों चीजें प्रूव कर लो। जजमेंट का नाम लिखिए प्लीज राइट डाउन द नेम ऑफ द जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट प्लीज। एटलीस्ट इट विल हेल्प। क्लैट जो अभी क्लैट के लिए अपीयर कर रहे हैं उनको शायद तुरंत हेल्प ना करे, बट उनको तो 1 साल बाद करेगी, बट जो इस समय कॉलेजेस में है उनको तो हेल्प करेगी ये। केस का नाम लिखिए प्लीज, बापू अलियास गुजराज सिंह। बापू अलियास गुजराज सिंह, गुजराज है शायद, गुजराज है, GUJ है, गुजराज सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। Most specifically para 8 of the judgment is very important. ये है इसका ईयर, देख लेना। इसका ईयर मुझे नहीं मिल पाया था, तो ईयर तुम लोग टाइप करके देखोगे तो मिल जाएगा अपने। और एक और जजमेंट लिख लीजिए प्लीज, धैया भाई, धैया DH सॉरी DAHYA, धैया भाई BHAI, धैया भाई, शांग भाई SHAGHA, शगन भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1964 सुप्रीम कोर्ट, 3 judges bench, के सुब्बाराव जस्टिस, जो तुम्हें मैंने अब तक जितना ही पढ़ाया है, लीविंग असाइड एंड और वो इधर और का जो गेम है उसमें एंड आता है, उस बाकी सब मैंने इस जजमेंट से पढ़ा है। जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। हाँ जी, yes, please go ahead. Sir, the case which you said, Bapu Gujarat Singh, that's 1995. 1995. Oh, thank you so much. Yes. 1995. बताओ, मेरे पैदा होने के बाद का केस है। Anyways, ये मुझसे पैदा होने के कितने पहले का केस है बताओ? 1964। हे भगवान, इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ था? 1947। हाँ, उसके 47 के बाद ही रिसेंटली जजमेंट है, 64 तुरंत। एनीवेज, भैया भाई शगन भाई, स्टेट ऑफ गुजरात 1964 सुप्रीम कोर्ट, 3 जजेस बेंच, के सुब्बाराव जस्टिस। That marks the end of section 84. So this judgment of Nasruddin versus state of West Bengal is a wrong judgment.
बट उसके फैक्ट्स जानबूझ के मैंने तुम्हें बताई है जजमेंट, बिकॉज उसके फैक्ट्स से तुम्हें मैं एटलीस्ट ये पॉइंट प्रूव कर पाया, मेरी जजमेंट गलत है।